SSP لیکس کے مزید تہلکہ خیز انکشافات، سندھ کے ایک اور اہم وزیر پر سنگین الزامات۔ ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ میں سعید غنی کے بھائی فرحان غنی پر جرائم پیشہ افراد سے روابط کا الزام لگایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق فرحان غنی منشیات فروشوں کے سہولت کار ہیں۔ چنیسر گوٹ میں فرحان اور حسن عرف ناتھا کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ حسن ناتھا اور فدا جوگی نے دوران تفتیش فرحان سے رابطوں کی تصدیق کی۔ میرے خلاف جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس کی ویریفیکیشن کرائیں، اگر یہ درست ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ میں سیاست چھوڑوں گا، سارے عہدے چھوڑوں گا، بلکہ جو سزا جس کا تعین وہ لوگ کریں گے، میں سخت سے سخت سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ اس قسم کے پولیس آفیسر کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، گھٹیا مقاصد کے لیے لوگوں کی عزتیں اچھالے۔ ڈاکٹر رضوان منشیات فروشوں کی سرپرستی اور ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہیں۔ سعید غنی کا جوابی وار، بولے ان کی تعیناتی کے بعد چنیسر گھوٹ میں منشیات فروشی بڑھی۔ شکایت کرنے پر ڈاکٹر رضوان کو تکلیف ہوئی۔ رضوان نے فیصل لودھی کا اعتراف سنایا، پھر اسے ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ ان کے بھائی سے 8 موٹر سائیکلز اور فرنیچر مانگا۔ مخبر بننے کا کہا۔ IG کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو ان کے اور امتیاز شیخ کے خلاف رپورٹس آ گئی۔ SSP ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ میں صوبائی وزیر امتیاز شیخ پر مزید الزامات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر امتیاز شیخ کے بیٹے فراز شیخ کے گن مین نے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کو 500 گولیاں فراہم کی۔ گن مینوں کے خلاف مختلف تھانوں میں ڈکیتی، قتل اور زیادتی کے 30 مقدمات درج ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، شکنجے میں آنے لگے فراڈ کرنے والے سرکاری افسران۔ 9 سال تک بیویوں کے نام پر غریبوں کا حق کیوں کھایا؟ شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ جواب کے لیے 10 دن کی مہلت۔ تسلی بخش جواب نہ دینے پر ملازمتوں سے برطرف کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر کہتی ہیں کہ ملوث افسران کے نام جلد سامنے لائے جائیں گے۔ فواد چوہدری کے وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی پر سوالات۔ پہلے کور کمیٹی اجلاس میں اٹھائے اعتراضات، پھر وزیر اعظم کو خط لکھ کر بتائے صوبے کے حالات۔ کہتے ہیں پنجاب میں ڈیلیور نہ کر پانے کے باعث پارٹی کو تنقید کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر کی وزرائے اعلیٰ کے ثوابدیدی فنڈز پر بھی تنقید۔ کہا وزرائے اعلیٰ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم نوٹس لیں۔ بریگزٹ کے بعد برطانیہ آنے کے خواہش مند یورپی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ پہلے سے موجود یورپی شہریوں کو بھی اپنا سٹیٹس کنفرم کرنا ہوگا۔ ماہر قانون سولیسٹر عاصم سلیمان کی 92 نیوز سے بریگزٹ پر خصوصی گفتگو۔ وزیر اعظم کے خصوصی مشیر زلفی بخاری کے فوکل پرسن رومی ملک لندن کے علاقے کرالی پہنچ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے زلفی بخاری دن رات کوشاں ہیں۔ رومی ملک کا کارکنوں سے خطاب، عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عہد۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر 26 جنوری کو بڑے مظاہرے کا اعلان۔ برمنگھم میں کشمیری اور سکھ کمیونٹی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ مڈ لینڈ سے 47 بسوں میں سینکڑوں مظاہرین شرکت کے لیے لندن پہنچیں گے۔ گلاسگو میں گوجرانوالا کلب کے زیر اہتمام مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خصوصی بیٹھک۔ مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ بھارت میں جلد ایک نیا پاکستان بنے گا۔ مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی کا دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹو میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। नाज़रीन, अहम खबर देंगे। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस में बढ़ने वाला मैच खासा सनसनीखेज हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत IG सिंध को जराइम बढ़ने का जिम्मेदार करार दे रही है, तो सिंध पुलिस के आला अफसरान अपनी रिपोर्ट्स में सिंध हुकूमत की आला शख्सियात पर क्रिमिनल्स की सरपरस्ती का इल्जाम लगा रहे हैं। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले SSP डॉक्टर रिजवान ने अपनी रिपोर्ट में एक और तहलका खेज इंकशाफ कर दिया है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख के बाद वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी को जराइम पेशा अफराद, उजरती कातिलों और मनशियात फरोशों का सहूलतकार करार दे दिया है। इम्तियाज शेख से मुतालिक मजीद चश्मकुशा इंकशाफात भी सामने ले आए। SSP डॉक्टर रिजवान की एक और तहलका खेज रिपोर्ट। एक और अहम वजीर लपेट में आ गया। डॉक्टर रिजवान ने वजीर इत्तलात सईद गनी के भाई फरहान गनी को जराइम पेशा अफराद, उजरती कातिल और मनशियात फरोशों का सहूलतकार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, चनेसर घोट में फरहान गनी और हसन उर्फ नाथा का मजबूत नेटवर्क है। फरहान गनी के जराइम पेशा अफराद के साथ मुस्तकिल राब्तों का कॉल रिकॉर्ड भी रिपोर्ट का हिस्सा है। दूसरी तरफ इम्तियाज शेख से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इम्तियाज शेख के बेटे फराज शेख के गनमैन ने डाकुओं को 500 गोलियां दी। गनमैन अली नवाज शेख के खिलाफ डकैती, कत्ल और ज्यादती के 30 मुकदमात भी दर्ज हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया, इम्तियाज शेख के बेटे ने बरादरी के 115 अफराद को पुलिस में भर्ती कराया, जबरदस्ती वोट लिए। 10 राज सरदार तेगू खान तेगानी और बीलू खान तेगानी मगवी शहरियों को कच्चे के इलाके में रखते थे। एडिशनल IG सखर ने इंकशाफ किया कि शिकारपुर पुलिस ने 1170 घोस्ट मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा किया, ताहम तहकीकात के दौरान इस रिपोर्ट को गलत करार दे दिया गया। खत की तफसीलात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। तो नाज़रीन, पुलिस अफसर की इंक्वायरी रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत तिलमिला उठी है। गुस्से से भरे सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जामात के बदले नए इल्जामात आयद कर दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध ने खुद को बेगुनाह करार देते हुए पुलिस अफसर पर मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती का इल्जाम आयद कर दिया। डॉक्टर रिजवान के असासों और अब तक की ताजुनातियों की इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया। सईद गनी गुस्से में डॉक्टर रिजवान को बुरा भला कह गए। इस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं इस वक्त बाकायदा वो ऑपोजिशन के रहनुमाओं को ब्रीफ कर रहे हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलकर वकला के पास जा रहे हैं। ऑपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर अखबारात में सोर्सेज के जरिए जो खबरें फीड कर रहे हैं। सईद गनी पुलिस रिपोर्ट पर बरहम, कहते हैं कुछ रिश्तेदार मनशियात फरोश हैं, ताहम उन्होंने कभी मुजरिमों की हिमायत नहीं की। दावा झूठा साबित हो जाए तो जो सजा कहेंगे भुगतने को तैयार हूँ। सियासत छोड़ने की पेशकश भी कर दी। मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई गई है उसकी वेरिफिकेशन कराएं मुस्तनद लोगों से, मुस्तनद अफसरों से। अगर ये दुरुस्त है कि मैं किसी भी तरह की इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस हूँ या मेरा भाई जिसका नाम दिया गया है, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि मैं सियासत छोड़ूंगा, सारे ओहदे छोड़ूंगा, बल्कि जो सजा जिसका तयन वो लोग करेंगे, मैं सख्त से सख्त सजा के लिए अपने आप को पेश करूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जज्बाती हो गए। SSP डॉक्टर रिजवान पर जराइम में मुलव्वस होने का इल्जाम भी लगाया और उनके बारे में चंद नामुनासिब अल्फाज भी जबान पर ले आए। इस किस्म के पुलिस ऑफिसर को ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो अपने जाती मकासद के लिए, घटिया मकासद के लिए लोगों की इज्जतें उछाले। ये थर्ड क्लास, थर्ड कैटेगरी का आदमी है। मुझे तो हैरत है कि ये आदमी पुलिस के अंदर भर्ती होकर इस पोजीशन पे पहुंचा कैसे है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जहां जहां इसकी पोस्टिंग्स रही हैं, इसकी पोस्टिंग्स पर सारी तहकीकात कराई जाए। मेरे एहसासों की भी करें, इसके एहसासों भी करें। सईद गनी ने कहा, फैसल लोधी को 1 दिसंबर 2017 को हजाम की दुकान से उठाया और पुलिस ने गोलियां मार दी। सिंध पुलिस का मिजाज भी नैब की तरह हो गया। सूबा सिंध की पुलिस का जो मिजाज है वो नैब की तरह हो गया। जो नैब के मुतालिक बोलेगा उस पर केस बना दो, यहाँ जो पुलिस पे बोलेगा उसकी रिपोर्ट बना दो। एक शख्स MQM छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ PIB कॉलोनी से, उसका नाम है फैसल लोधी। 1 दिसंबर 2017 को उसको PIB कॉलोनी से, हजाम की दुकान से, जहाँ वो बाल बनाने गया था, उसको पुलिस उठाती है रात को 9 बजे या 9:30 बजे। रात को 11:30 बजे उसको गोलियां मार के हलाक कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा, उनके ज़िमनी इलेक्शन में एक गैंग MQM और दूसरा इरफान मरवत की हिमायत कर रहा था। डॉक्टर रिजवान भी असरअंदाज होते रहे। मेरा जब इलेक्शन हो रहा था ज़िमनी, उस ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इसने जो मेरे इलाके के थाने हैं वहाँ के SHOs को कहा कि सईद गनी के जो हिमायती हैं
ढूंढो इनमें से किसी के ऊपर कोई पुराना केस है तो उनको उठाओ। इसने बंदे उठवाए इलेक्शन के दौरान हमारे, जो मेरी सपोर्ट कर रहे थे, ये फरीक बना हुआ था वहाँ। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मजीद कहा, उन्होंने आज तक किसी मुजरिम की सिफारिश नहीं की। उनके और इम्तियाज शेख के खिलाफ रिपोर्ट्स झूठी हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अवाम को रिलीफ ना मिलने की बड़ी वजह पंजाब हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी को करार दे दिया है। कहा, पंजाब में सियासी साइड डिलीवर कर रही है, ना ही इंतजामी। तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर दबाव का सामना है, इजला को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। फवाद चौधरी की शिकायत पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को सूबाई कमीशन अवार्ड जारी करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में बैड गवर्नेंस, सियासतदान कोई काम कर रहे हैं, ना ही इंतजामिया। ये कहना है वफाकी वजीर फवाद चौधरी का। वज़ीर आज़म के नाम खत में उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए, अहम मामलात पर नोटिस लेने की अपील कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, सूबे फंड्स मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने के पाबंद हैं, लेकिन मुसलसल आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं दिया, हम भी उसी राह पर गामजन हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में भी फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद की। वफाकी वजीर ने कहा, पंजाब डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिसके बायस तहरीक इंसाफ को दबाव का सामना है। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया, पंजाब का 350 अरब का तरक्याती बजट है, सिर्फ 77 अरब रुपए रिलीज हुए। फवाद चौधरी की निशानदही के बाद वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड के इजरा का हुक्म दे दिया। एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ सरकारी अफसरान गरीबों, बेवाओं और यतीमों का हक खाने में मसरूफ हैं। लेकिन परेशान ना हो, अब इन अफसरान के हिसाब का वक्त करीब आ गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जालसाजी के जरिए रकम बटोरने वाले अफसरान के गिर्द घेरा तंग हो गया। हुकूमत ने धोखेबाज अफसरान को नौकरी से बरतरफ करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। यतीमों, बेवाओं और गरीबों का हक खाने वाले सरकारी अफसरान की शामत आ गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वज़ाइफ लेने वाले अफसरान शिकंजे में आ गए। हुकूमत ने रकम वसूल करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाले सरकारी अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। पूछा गया, बताएं 9 साल तक बीवियों के नाम पर गरीबों का हक क्यों खाया? 10 रोज में जवाब न देने वालों की बरतरफी अमल में लाई जाएगी। डेरा इस्माइल खान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नुमान जैगम को भी बीवी के नाम पर पैसा खाने पर शो कॉज नोटिस जारी हो गया। डॉक्टर सानिया नश्तर का कहना है कि जल्द तमाम अफसरान के नाम सामने लाएंगे। जैसे ही ये नाम आइडेंटिफाई हुए थे, हमने उसी दिन जो बिस्प के मुलाजमीन थे उनके खिलाफ हमने एक्शन उसी दिन ले लिया था। हमने उन्हीं को सबको शो कॉज नोटिस इशू उसी दिन कर दिए थे। हुकूमत ने चंद रोज कबल ही इंकशाफ किया था कि मुल्क भर में सरकारी अफसरान अपनी बीवियों के नाम पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम लेते रहे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के यूरोप से अलग होने के 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। क्या 31 जनवरी से कबल बरतानिया आने वाले यूरोपीय शहरी बरतानिया में मुस्तकिल सुकूनत की दरख्वास्त दे सकेंगे? इसी पर ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने माहिर कानून सोलिसिटर आसिम सुलेमान से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक्जिट जो है वो बिल्कुल तैयार है होने को, और 2 हफ्तों से भी कम वक्त जो है वो रह चुका है जब बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इसके अलग होने के बाद क्या प्रोसेस होगा, जो यहाँ पर लोग ऑलरेडी यूरोप से आकर रह रहे हैं या दूसरे नए आने वाले होंगे, इसके लिए हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ माहिर कानून सोलिसिटर आसिम सुलेमान साहब लंदन के अंदर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि बेसिकली 31 जनवरी के बाद क्या होगा। जी 31 जनवरी जो यहाँ पे ऑलरेडी EU नेशनल रह रहे हैं उनको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 31 जनवरी की डेट रिमेंबर रखने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो EU नेशनल हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं और UK में आके परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्लान करें और जल्दी से ही 31 जनवरी से पहले यहाँ पे मौजूद हो जाएं, ठीक है। और साथ ही उनको ये भी है कि वो अपना TT राइट एक्सरसाइज कर सकें। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी बुनियाद पे वो TT राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आना चाहते हैं और EU नेशनल हैं। जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, जो EU नेशनल हैं, उनको ये करना है कि उनके लिए डेडलाइन सेट है 30 जून 2021, और उनको उस डेडलाइन तक उन्होंने सेटल स्टेटस की या प्री सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन करनी है। सो दे हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट मेकिंग एन एप्लीकेशन। अच्छा, लेकिन 31 जनवरी से मैं आपको दोबारा कहूँगा, उसके बाद बेसिकली क्या ब्रेक थ्रू होगा कि जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग आ चुके हैं उनको फ़ायदा होगा,
या बेसिकली होगा क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ 31 जनवरी के बाद रास्ते बंद हो जाएंगे जो नए आने वाले उनके लिए? नहीं, जो नए आने वाले लोग हैं रास्ते नहीं बंद होंगे, वो सिर्फ ये है कि जो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं वो नहीं कर सकेंगे। ओके। वो आ सकेंगे, उनका जो 2 साल तक वो जो वैलिड आईडी है, जो उनका EU पासपोर्ट है, मतलब वहाँ पर यहाँ पर आकर वो नई कार्ड अप्लाई नहीं कर सकेंगे, कोई बिजनेस नहीं कर सकेंगे? जी, उनको आके लीव टू रिमेन अप्लाई करना पड़ेगा 31 जनवरी के बाद। जो जितने भी EU नेशनल हैं वो फिर ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आसिम सुलेमान साहब ये बता रहे थे कि जैसे ही ब्रेक्सिट 31 जनवरी के बाद होगा तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो साउथ एशिया के लोग हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, चूँकि पहले ही उन्होंने कुछ वीज़ा कैटेगरी जो है वो इंक्रीज़ की हैं, तो की जा सकती है कि अगर वो लोग इनकी वेबसाइट पर जाकर देखें और उनके लिए जो है मज़ीद इसमें आसानियाँ मिल सकती हैं। जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी के बरतानिया में फोकल पर्सन रूमी मलिक ने लंदन के इलाके कराली का दौरा किया और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इस दौरान जुल्फ़े बुखारी के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने को सराहा गया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे। PTI बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी के बरतानिया में फोकल पर्सन रूमी मलिक ने अपनी टीम की तंजीम नौ के लिए कराली का दौरा किया, जहाँ से राजा राज़िक को मेंबर मुंतखब किया गया। रूमी मलिक ने कहा मशरिक़ वस्ता और मलाइशिया में पाकिस्तानियों की मुश्किलात को फौरी तौर पर हल किया जा रहा है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी का किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़े होने का भी अहद किया। तकरीब में PTI साउथ ईस्ट के सदर शहबाज अहमद, शहनाज, राजा राज़िक और नईम उल्फत ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और जुल्फ़े बुखारी का शुक्रिया अदा किया। रूमी मलिक ने ब्रीफिंग में ओवरसीज़ टीम बनाने के अगराज और मकासद बयान किए। उन्होंने बताया कि ये टीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को तेज़ रफ्तारी से हल करने के लिए काम करेगी। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। 26 जनवरी को लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने बड़ा मुजाहरा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भरपूर अंदाज में की जा रही हैं। इस हवाले से बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर बरतानिया और वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मज़ीद अहवाल आबिद कासिम की इस रिपोर्ट में। 26 जनवरी भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज करने का फैसला किया है, जिसको हतमी शक्ल देते हुए बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर तफसीलात से आगाही देते हुए सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी और मरकज़ी तर्जुमान वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट रंजीत सिंह ने बताया कि गुज़श्ता 5 माह से मोदी ने कश्मीरियों को उनके घरों में इस तरह कैद रखा है जिस तरह एक परिंदे को पिंजरे में रखा जाता है। एक मरतबा फिर भारत दुनिया को धोखा देने के लिए 26 जनवरी को पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार होने का जश्न मना रहा है, जिस पर आलमी अमन के ठेकेदार खामोश हैं। लेकिन हम खामोश नहीं रह सकते, हम बाहर निकलेंगे, हम मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। आपसे ब्रिटिश कश्मीरी कम्युनिटी से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से, इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि 26 जनवरी को संडे को 1 बजे इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर इकट्ठे हों और भारत का नाम नहाद जमहूरियत का चेहरा बेनकाब करें और दुनिया को बताएं कि ये नाम नहाद जमहूरियत कश्मीर के अंदर कत्लेआम कर रही है और इस नाम नहाद जमहूरियत ने 5 अगस्त 2019 से वहाँ पर लॉकडाउन किया हुआ है। We are not going to get them. So it is important for us all to join hands, the minorities especially, get together and tell the world, tell the Indian government, tell the others that we mean business and we are not going to stop until we get independence from India, and India then do whatever they like, but they cannot rule the Sikhs or the Kashmiris or any freedom fighters which likes to have independence from India. राजा फ़हीम कियानी और रंजीत सिंह ने आलमी मीडिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया। इस वजह से बाज़ ममालिक बैक डोर अपना किरदार अदा कर रहे हैं ताकि दोनों ममालिक के हालात मामूल पर आ सकें। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ UNO ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ UNO ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। India has committed atrocities. India has committed genocide against the Sikhs and against the Muslims, and in particular against the Muslims in Kashmir. This is unacceptable, and we are going to highlight this on the 26th of January in front of the Indian High Commission in London, when the Indians will be celebrating their so-called
Republic Day when they adopted their constitution. A constitution which even denies that the Sikhs are a separate and a distinct religion. A constitution which suggests that the Sikhs are a part of Hindus. It's absolutely outrageous. Every single civilized country in the world recognizes the Sikhs. इंडिया में जो मुसलमानों के साथ और दूसरी मेजॉरिटी के साथ हो रहा है ये बहुत ही जुल्म है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिख और कश्मीरी रहनुमाओं ने तमाम दर्द दिल रखने वाले ओवरसीज कश्मीरी, पाकिस्तानी और सिख कम्युनिटी से अपील की कि वो 26 जनवरी को मजलूम कश्मीरियों की तर्जुमानी के लिए बाहर निकलें और लंदन हाई कमिश्नर के बाहर जमा होकर हिंदुस्तान के जमहूरियत के दावे को रद्द करें। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ CAA ਤੇ NRC ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡਾ सहयोग ਦਿਓ। ये किस मुंह से 26 जनवरी को जमहूरी दिन सेलिब्रेट कर सकती है? इसी नाम ने आज जमहूरियत ने कश्मीरियों का जमहूरी हक उदरादियत का कत्लेआम किया। इसी नाम ने आज जमहूरियत ने लाखों कश्मीरियों का कत्लेआम किया। इसी नाम ने आज जमहूरियत ने हज़ारों हमारी माओ बहनों बेटियों की कश्मीर के अंदर असमत दरी की। इसी नाम ने आज जमहूरियत 2 लाख बच्चों को यतीम किया। इस नाम ने आज जमहूरियत का चेहरा बेनकाब करने के लिए हज़ारों कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर 1 बजे 26 जनवरी को बरोज़ इतवार इकट्ठे होकर भारत का ज़रमाना चेहरा बेनकाब करेंगे। UK में रहने वाले तमाम इंसानियत दोस्त अवाम से गुजारिश है कि 26 जनवरी को इंडियन हाई कमीशन लंदन में जौक दर जौक शामिल होकर इंडियन ब्लैक डे पे शामिल होकर इंडिया का चेहरा बेनकाब करें। 26 जनवरी ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਨਾਗਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ये जुल्म के खिलाफ हाँ। आलमी बरादरी मुदाखलत करे और मकबूजा कश्मीर के कर्फ्यू का खात्मा करवा कर आज़ादी का हक दिलवाए। ਅਸੀਂ 1950 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी लेके रवांगे। कम्युनिटी रहनुमाओं ने बताया कि 26 जनवरी को सुबह 9 बजे मिडलैंड से 47 बसें रवाना होंगी जो 1 बजे लंदन में पहुंचकर बरतानिया भर से आए हुए मुजाहिरीन के साथ मिलकर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगी ताकि भारत इंडिया के अंदर अक़लियतों के साथ इंसानियत सोज मुजालिम बंद करने पर मजबूर हो सके। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ग्लासगो में गुजरांवाला क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम बैठक मुनक्किद हुई। शुरका ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत पाकिस्तान से कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा किया। शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। ग्लासगो में गुजरांवाला क्लब के ज़ेर एहतमाम बैठक मुनक्किद हुई जिसमें पाकिस्तानी नौजवान शरीक हुए और कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। गुजरांवाला क्लब के अहदेदारान ने 92 न्यूज़ से कहा, मकबूजा कश्मीर पर आलमी ताकतें तो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हैं। आज का ये हमने यहाँ पे मीटिंग की है और हम इसके लिए एक लाहे अमल तरतीब दे रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ के लोकल MPs और MSPs से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे हम कश्मीर को कम से कम स्कॉटलैंड की सतह पर हाईलाइट कर सकें। उम्मत मुसलमा, इस्लामी दुनिया सब सो रही है, कश्मीरी कट रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भूल गई है कि ये भी इंसान है, दुनिया को कुछ करना चाहिए। इमरान खान सब कुछ करते हो, कभी इसके बारे में कुछ करो तुम्हें दुनिया याद रखेगी। कश्मीर के इशू दे बहुत ज़्यादा गल्लां हो चुकी हैं मगर सब तो ज़्यादा जी ज़रूरी चीज़ है ना वो इंसानियत को प्रोटेक्ट करना है। जुल्म हो रहा है बच्चों के ऊपर और बूढ़ों के ऊपर, वो यकीन माने दिल नहीं करता कि वो देखा जाए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर हमें मौका मिले सबसे पहले मैं बारिश का वो पहला कतरा बनूं और मैं जाऊं और जितने भी मेरी हिम्मत हो मैं उनको बताऊं कि कैसे ये जो नहते लोग हैं इस पे जुल्म किया जाता है। पाकिस्तान जो कि पहले शुरू में इन्होंने काफ़ी इस बात को उछाला था, उन्होंने कहा था हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन्होंने पाकिस्तान का मीडिया जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व थी शुरू में इस चीज़ों में, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे हम देखते हैं 165 डेज हो गए हैं,
لیکن ان کی بات کو ایک طرح کی رد ہی کر دیا ہے. کشمیر کے معاملے پہ جس طرح ہماری حکومت اس معاملے کو بالکل بھول چکی ہے, ہم اپنی حکومت پاکستان سے بڑی پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جیسے پہلے دن سے ہی انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا تھا, اس سے بھی زیادہ بھرپور طریقے سے اس کو دوبارہ اجاگر کریں. انہوں نے کہا بھارتی فوج کے ظلم و ستم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. شاہد میر, 92 نیوز, گلاسکو. دنیا کی سب رعنائیاں آقائے دو جہاں والی کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی وجہ سے ہیں. مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم کے بادل چھٹنے والے ہیں. جلد انڈیا میں ایک نیا پاکستان بنے گا. ان خیالات کا اظہار مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹوف میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا. تفصیلات دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کے رپورٹ میں. دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹون لندن میں مفکر اسلام قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے نماز جمعہ کا خطبہ دیا, جس کو سننے برطانیہ کے طول و عرض سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سچا بندہ وہ ہوگا جو کل دنیا کو سرکار کی طرف بلائے اور کل دنیا کے کمالات کی کا مجموعہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے. اپنے خطبہ میں قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی اور مسلم امہ کے اتفاق و اتحاد پر خصوصی اظہار خیال کیا. قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کا کہنا تھا کہ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر آپس میں اتفاق کو یقینی بنا لیں تو اسی میں ہم مسلمانوں کی کامیابیوں کا امرانی ہے. مسلمان آپس میں دلی طور پر ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں اور دلی ہمدردیوں سے ایک دوسرے کو محروم کیا ہوا ہے. اگر دلی طور پر یہ متفق ہوں اور دلی ہمدردیاں ایک دوسرے کے حاصل ہوں تو پھر انشاءاللہ پھر باہر آتی ہے تجھ میں اے گلستان غم رکھا, وہ چلی آتی ہے فوج اندلیبہ غم رکھا. اس موقع پر کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں پر بھارتی مظالم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی مظلومیت کے سامنے فرعون کی حکومت ایک دن بھی نہ ٹھہر سکی. بھارتی ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں پر مظالم انتہا پر ہیں اور یہ بھارت کے اندر ایک نئے پاکستان کی خوشخبری ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن میں اس نے تختہ الٹ کر رکھ دیا تھا. جو صبح کے وقت تاج پوش تھے اور حکومت ان کے پاس تھی, شام کے وقت ان کی لاشیں تیر رہی تھی بحر احمر میں, ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی لٹ پٹ جاتا ہے تو اس کی صبح کامرانی قریب ہوتی. یہ علامات ہیں ایسے کہ انشاءاللہ العزیز سرزمین ہند میں ایک اور پاکستان بنے گا اور وہ 28 کروڑ مسلمان جو اس جگہ مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تاج سروری عطا فرمائے گا. اس موقع پر پیر سید مظہر حسین شاہ نے انبیاء کرام اور اولیاء کاملین کی سیرت طیبہ پر خصوصی روشنی ڈالی. نماز جمعہ کے بعد پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی. غلام حسین اوان, 92 نیوز, لندن. بریڈ فورڈ کے پاکستانی نیاد نشید آرٹسٹ اسماعیل حسین کا نیا کلام ہو اللہ ریلیز کر دیا گیا. خوبصورت آواز کے مالک اسماعیل حسین رواں سال مزید 5 کلام ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 92 نیوز کے نمائندے وقار بابر مغل سے گفتگو کرتے انہوں نے کیا کہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نعت خوان اسماعیل حسین, جنہوں نے ایک نئے انداز میں نعت خوانی کا آغاز کیا ہے اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک نعت پڑھی ہے جو کہ 3 زبانوں میں انہوں نے پڑھی ہے. اس کی لانچنگ کے لیے ابھی یہ جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیا انہیں کیسے آیا. جی. So the idea is our new project is called Project 5, and Project 5 is a series of 5 English faith-inspired nasheeds. So myself and my team have been working on this project for 2 or 3 years now, and what it consists of is nasheeds in, like I said, 3 different languages, Urdu, English and Arabic, and it's something for the youth. So we've been working on this for 2 or 3 years now, and I think there's something that's needed in this day and age, something for the youth, so the youth can not only listen and enjoy, but they can also learn something from this too, inshallah. آپ کی یہ خوبصورت نعت جو ہے یہ ابھی اسکرین پہ بھی چل رہی ہے, لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں. آپ نے نعت جو ہے یہ کب کس عمر میں آپ نے جو ہے نعت پڑھنا شروع کیا تھا؟ So I started first reciting naats when I was around 7 years old. So alhamdulillah I've been reciting naats for 10 years now, but I've mainly been reciting naats in Punjabi and Urdu. So now I thought it was time for a change and do something in English. So because most of the people that do listen to my naats are youngsters and they don't understand Punjabi or Urdu. So I think this project will be something new for the youth, so they can understand, enjoy and definitely learn something from this too. فیوچر میں آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے اس کے علاوہ؟
Definitely work on more nasheeds. So like I said, I have been doing Duam Punjabi, and this is a new journey for me, and inshallah I would like to carry this journey on in the future, release more nasheeds in English, Arabic and many different other languages too. Any message for youngsters? One message I would just like to give is just stay off the streets, do what you enjoy. My passion is reciting naats and nasheeds. That's why I'm here reciting nasheeds, and just do what you enjoy, keep your parents proud, stay off the streets and stay in good company. But the main thing is keeping your parents proud, because I believe that the reason I am where I am today, traveling the world, touring the world, is because of the duas of my parents. So definitely keep your parents happy and just do what you enjoy. बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस के अरकान और पाकिस्तान कॉक्स के अहदेदारान से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान समेत खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमरीकी कांग्रेस के पाकिस्तानी कॉक्स ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से कैपिटल हिल में मुलाकात की, जिसमें कॉक्स की चेयरपर्सन शीला जैक्सन, थॉम सूजी और जिम बैंक के अलावा कॉक्स के दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। मुलाकात में कांग्रेस की फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन इलियट एंगल के अलावा सब कमेटी बराए एशिया के चेयरमैन भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के साथ अपनी शराकत की कदर की है। उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कॉक्स के किरदार को भी सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने माशी तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान के विजन के अलावा अफगान अमन अमल में सहूलतकारी और खित्ते में दहशत गर्दी को शिकस्त देने, इलाकाई अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिश से अहदेदारों को आगाह किया। उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अवामी और बैनुल पार्लिमानी रवाबत को मजीद तक़वियत देने की अहमियत पर भी जोर दिया। कॉक्स के मेंबरान ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मेंबरान ने इस मौके पर दो तरफा राबतों और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में पाकिस्तानी निजात अमरीकियों के किरदार को भी सराहा। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।